A very good morning to everyone. Welcome back to the new vlog. और अभी तक का कुछ ऐसा सीन था कि हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर हो गई। कल हमारा रेस्ट डे था और आज हम एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। आज है हमारा जिम में पुश डे, यानी चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। जो हमने बॉडी को रेस्ट देने का डिसीजन लिया था वो अभी तक सही रहा। अब मैं एकदम बहुत अच्छे से रिकवर फील कर रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा अपने प्रीवियस लिफ्ट और आज के लिफ्ट में कितना फ़र्क हुआ रेस्ट देने के बाद। मतलब पिछली बार कितना वेट उठाया था और उसी वेट के कितने ज़्यादा रेप्स निकल पा रहे हैं, और नहीं भी निकल पाए तो वो भी शेयर करूँगा आपसे। अब देरी ना करते हुए हम अब निकलते हैं जिम के लिए। इंग्लिश इज गुड। Now, I want to know your English is good. Yeah. Where you learn from it at your school? I have been practicing it in school. Yes, basically, you are saying that your school environment is like that. Not the entire environment, but if we are talking about teachers, then we need to speak English. Okay. Oh, recently I am practicing English spoken. Yes. Yeah, I have not told you. Yes. Because that need too much English spoken in our life. So I'm practicing more about the I've also been to seminars and events. because that is the easy part for the English medium student or CBSE student, but student from the MP board or Hindi medium, that stuff talks for the English spoken. So right now how you practice it? How did you practice when you learning English? I often learn new words and mark them in dictionary, and I try to frequently use them when I speak. Suppose just now I've learned a word, perspicacity. It means how quickly and how efficiently you grab the things in your mind. Yes, that I also works on this time, but I take the entire sentence to grab the perspicacity in your mind. I just use the word. yes, but in my learning phase I am only remember easy words because I am a new beginner type English conversationist. So we have the Ishan is here, and no English in general language. So some of the part I try to speak in the English in my vlog. So I will improve my English that type of conversation. You have seen how we practice English conversation with other people. That's the easy way. When if you found any kind of person who are good in the English, so try to conversation with them. So that is the easy part when you speak any kind of language. So this English practice is done. Now we are taking our pre-workout. We have two flavors. There is पैसा है नहीं, एक दोस्त का है और एक ये ब्लैक डेडी ब्लैक मैजिक इट्स माइन. So now we are taking our pre-workout. Then we will go for our training session, which is push day, and mainly we cover chest, ट्राइसेप एंड शोल्डर. केप में माइक लगाने वाला फंडा अच्छा लगता है मुझे यार, इसमें अच्छा रहता है भैया. कॉलर में लगाने से अच्छा यहाँ पर अच्छा लगता है. वो आराम से लगा लो और आपका काम करो, डिस्टर्ब भी नहीं होते यहाँ पर. तो एक और थिंग कि आप जब भी कोई सा भी अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो तो एक बात याद रखो हमेशा कि आपका शोल्डर का जो वार्म अप है बहुत अच्छे से किया करो. ये देखो उसमें कैमरे मैन उधर देख, तो पूरा फ्रेम में आ रहा हूँ, पूरा यहाँ से लेके ऊपर आ रहा हूँ. तो पिछली बार हमारे इंक्लाइन डंबल पर 25 kg से 10 रेप्स निकले थे तीनों सेट में. इस बार हम देखते हैं कि हमारे 25 kg से कितने ज़्यादा रेप निकलते हैं. चलो
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The next workout of our push day is pec deck fly. और पिछली बार 50 kg के हमने 12 reps लगाए थे. इस बार सेम वेट के साथ हम 1 या 2 रेप एक्स्ट्रा लगाएंगे. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. नेक्स्ट वर्कआउट ऑफ आवर पुश डे इज आवर लेटरल रेस. और इसके भी हम 3 सेट लगाएंगे. और इस बार हमने सभी एक्सरसाइज में प्रोग्रेस किया है. तो आवर रेस्ट डे इज वर्किंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. चलो 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. उस वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है. पिछली बार हमने ट्राइसेप पुश डाउन लगाया था. इस बार मैं एक्सरसाइज को चेंज कर रहा हूँ. मैं स्कल क्रशर लगाऊंगा. और क्योंकि मुझे ना पुश डाउन मैंने पहली बार भी मारा था, पर एक के अंदर ही मारा था, तो उसको चेंज करके मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर स्कल क्रशर. 3 सेट लगाएंगे अगेन इसके. और ये लास्ट वर्कआउट है. इसके बाद हम हमारा कार्डियो करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके, डन फॉर द डे. हम थोड़ी देर कार्डियो करेंगे. आज वर्कआउट जल्दी हो गया. रिमेंबर वन थिंग कि आपको ना लाइफ में ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ की उसकी प्लान कर लो आप. जो छोटी मोटी चीज़ें उन्हें अनप्लान ही रहने दो. जैसे अभी मैं रिसेंटली अपनी लाइफ का एग्जांपल दूँ. मुझे ब्लॉगिंग करना है, वीडियो पोस्ट करना है, और मैं दिन भर इस बारे में सोचता हूँ कि ये शॉट लेना है, इस तरीके से डालना है, इतनी बजे ही मुझे ब्लॉग डालना है. तो मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब वो चीज़ें टाइम पे नहीं होती. तो इसकी वजह मैं करता हूँ जो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, कि मुझे एक तो रोज़ वर्कआउट करना है, ठीक है. सेकेंड वन कि मुझे दिन भर एक अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, अच्छी एकदम क्लीन डाइट लेना है. और थर्ड वन कि मुझे एक वीडियो डालना है, नो मैटर कि मैं कब डाल रहा हूँ. ऐसे टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि और इतनी बजे ही डालना है. मेरा व्लॉग कभी 10 बजे हो जाता है, कभी 9:30 बजे हो जाता है. और या छोटी छोटी चीज़ें इनको मैं अब ध्यान नहीं देता. तो इसके क्या होता है कि अब मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता. ठीक है, अब मैं है ना थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ कि यार ठीक है, वर्कआउट हो गया, अच्छा, बहुत बढ़िया, जो चाहते थे वैसा वर्कआउट हो गया, ठीक है. दिन भर में क्लीन खा लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया. और एक दिन में एक व्लॉग डाल दिया, ठीक है. और ऐसा बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ मैं अब चीज़ें. तो अब बहुत मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है. का ये फ़ायदा है कि आपको डाइट में अच्छा खाना मिलता है. अभी हम फ्राइड राइस खाएंगे, मतलब पनीर फ्राइड राइस खाएंगे. लुकिंग वेरी टेस्टी. स्कूल के लिए निकल रहे हैं अब. That's our office area. Now this is our lunch time and we will do the lunch in the classes. Day is here right now. Privacy लिख कर दूँ? क्या ले गया? वो घर वाले में समझा ये वो मेरा नहीं है.
पीछे सेट सर का बना सर का स्कल भी आ गया बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर इज़ द कि आपको चॉकलेटें बहुत मिलती है, तो क्या करें, हम तो खा ही नहीं सकते इनको।